پہلا باب سلیمان کی غزل و غزلات۔ وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے۔ تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے، تیرا نام عطر ریختہ ہے، اسی لیے کنواریاں تجھ پر عاشق ہیں۔ مجھے کھینچ لے، ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی۔ بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا، ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی۔ ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کریں گی، وہ سچے دل سے تجھ پر عاشق ہیں۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں سیاہ فام لیکن خوبصورت ہوں۔ کیدار کے خیموں اور سلیمان کے پردوں کی مانند مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں، کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوں۔ میری ماں کے بیٹے مجھ سے ناخوش تھے، انہوں نے مجھ سے تاکستانوں کی نگہبانی کرائی، لیکن میں نے اپنے تاکستان کی نگہبانی نہیں کی۔ اے میری جان کے پیارے، مجھے بتا، تو اپنے گلہ کو کہاں چراتا ہے اور دوپہر کے وقت کہاں بٹھاتا ہے؟ کیونکہ میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری پھروں؟ اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، اگر تو نہیں جانتی تو گلہ کے نقش قدم پر چلی آ اور اپنے بزغالوں کو چرواہوں کے خیموں کے پاس پاس چرا۔ اے میری پیاری، میں نے تجھے فرعون کے رتھ کی گھوڑیوں میں سے ایک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تیرے گال مسلسل زلفوں میں خوشنما ہیں اور تیری گردن موتیوں کے ہاروں میں۔ ہم تیرے لیے سونے کے توق بنائیں گے اور ان میں چاندی کے پھول جڑیں گے، جب تک بادشاہ تناول فرماتا رہا۔ میرے سنبل کی مہک اڑتی رہی۔ میرا محبوب میرے لیے دستہ مر ہے، جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ میرا محبوب میرے لیے عین جدی کے انگورستان سے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے۔ دیکھ تو خوبرو ہے، اے میری پیاری، دیکھ تو خوبصورت ہے۔ تیری آنکھیں دو کبوتر ہیں، دیکھ تو ہی خوبصورت ہے، اے میرے محبوب، بلکہ مرغوب خاطر ہے۔ ہمارا پلنگ بھی سبز ہے، ہمارے گھر کے شیطیر دیودار کے اور ہماری کڑیاں صنوبر کی ہیں۔ دوسرا باب میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں۔ جیسی سوسن جھاڑیوں میں، ویسی ہی میری محبوبہ کنواریوں میں ہے۔ جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں، ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے۔ میں نہایت شادمانی سے اس کے سایہ میں بیٹھی، اور اس کا پھل میرے منہ میں میٹھا لگا۔ وہ مجھے مے خانہ کے اندر لایا، اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا۔ کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے، اور اس کا داہنا ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو غزالوں اور میدان کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ، جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے۔ میرے محبوب کی آواز دیکھ، وہ آ رہا ہے، پہاڑوں پر سے کودتا اور ٹیلوں پر سے پھاندتا ہوا چلا آتا ہے۔ میرا محبوب آہو یا جوان ہرن کی مانند ہے۔ دیکھ، وہ ہماری دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، وہ کھڑکیوں سے جھانکتا ہے، وہ جھنجریوں سے تاکتا ہے۔ میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کی اور کہا، اٹھ میری پیاری، میری نازنین چلی آ، کیونکہ دیکھ جاڑا گزر گیا، می برس چکا اور نکل گیا۔ زمین پر پھولوں کی بہار ہے، پرندوں کے چہچہانے کا وقت آ پہنچا، اور ہماری سرزمین میں کمریوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ انجیر کے درخت میں ہرے انجیر پکنے لگے اور تاکیں پھولنے لگی، ان کی مہک پھیل رہی ہے۔ سو اٹھ میری پیاری، میری جمیلہ چلی آ۔
ऐ मेरी कबूतरी जो चट्टानों की दरारों में और कुड़ाड़ों की आड़ में छिपी है, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज सुना, क्योंकि तू माजुबी और तेरी आवाज शीरीं है। हमारे लिए लूमड़ियों को पकड़ो, उन लूमड़ी बच्चों को जो ताकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। मेरा महबूब मेरा है और मैं उसकी हूँ। वो सोसनों के दरमियान चराता है जब तक दिन ढले और साया चढ़े। तू फिर आ ऐ मेरे महबूब, तू गजाल या जवान हिरन की तरह होकर आ जो बातर के पहाड़ों पर है। मैंने रात को अपने पलंग पर उसे ढूंढा जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। अब मैं उठूंगी और शहर में फिरूंगी, कूचों में और बाजारों में उसको ढूंढूंगी जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। पहरे वाले जो शहर में फिरते थे मुझे मिले। मैंने पूछा, क्या तुमने उसे देखा जो मेरी जान का प्यारा है? अभी मैं उनसे थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया। मैंने उसे पकड़ रखा और उसे ना छोड़ा जब तक कि मैं उसे अपनी माँ के घर में और अपनी वालदा के खिलवत खाना में ना ले गई। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं तुमको गजालों और मैदान की हिरनियों की कसम देती हूँ कि तुम मेरे प्यारे को ना जगाओ ना उठाओ जब तक कि वो उठना ना चाहे। ये कौन है जो मुर और लुबान से और सौदागरों के तमाम इतरों से मुअत्तर होकर बियाबान से धुएं के सतून की मानिद चला आता है? देखो, ये सुलेमान की पालकी है जिसके साथ इसराइली बहादुरों में से 60 पहलवान हैं। वो सब के सब शमशीर जन और जंग में माहिर हैं। रात के खतरा के सबब से हर एक की तलवार उसकी रान पर लटक रही है। सुलेमान बादशाह ने लुबनान की लकड़ियों से अपने लिए एक पालकी बनवाई। उसके डंडे चांदी के बनवाए, उसकी नशिस्त सोने की और गद्दी अर्गवानी बनवाई, और उसके अंदर का फर्श यरूशलेम की बेटियों ने इश्क से मुरस्सा किया। ऐ सयून की बेटियों, बाहर निकलो और सुलेमान बादशाह को देखो, उसके ताज के साथ जो उसकी माँ ने उसके ब्याह के दिन और उसके दिल की शादमानी के रोज उसके सर पर रखा। चौथा बाप। देख तू खूबसूरत है ऐ मेरी प्यारी, देख तू खूबसूरत है। तेरी आंखें तेरे नकाब के नीचे 2 कबूतर हैं। तेरे बाल बकरियों के गल्ला की मानिद हैं जो कोहे जलाद पर बैठी हों। तेरे दांत भेड़ों के गल्ला की मानिद हैं जिनके बाल कुतरे गए हों और जिनको गुस्ल दिया गया हो, जिनमें से हर एक ने 2 बच्चे दिए हों और उनमें एक भी बांझ ना हो। तेरे होंठ किरमजी डोरे हैं, तेरा मुंह दिल फरेब है। तेरी कनपट्टियां तेरे नकाब के नीचे अनार के टुकड़ों की मानिद हैं। तेरी गर्दन दाऊद का बुर्ज है जो सिला खाना के लिए बना, जिस पर 1000 सिपरें लटकाई गई हैं। वो सब की सब पहलवानों की सिपरें हैं। तेरी दोनों छातियां 2 तवाम आहू बच्चे हैं जो सोसनों में चरते हैं जब तक दिन ढले और साया बढ़े। मैं मुर के पहाड़ और लुबान के टीले पर जा रहूंगा। ऐ मेरी प्यारी, तू सरापाए जमाल है, तुझ में कोई ऐब नहीं। लुबनान से मेरे साथ ऐ दुल्हन, तू लुबनान से मेरे साथ चली आ। अमाना की चोटी पर से, सनीर और हरमून की चोटी पर से, शेरों की मांदों से और चीतों के पहाड़ों पर से नजर दौड़ा। ऐ मेरी प्यारी, मेरी ज़ौजा, तूने मेरा दिल लूट लिया। अपनी एक नजर से, अपनी गर्दन के एक तौक से तूने मेरा दिल गारत कर लिया। ऐ मेरी प्यारी, मेरी ज़ौजा,
तेरा इश्क क्या खूब है, तेरी मोहब्बत मैं से ज्यादा लजीज है, और तेरे इत्रों की महक हर तरह की खुशबू से बढ़कर है। ऐ मेरी ज़ौजा, तेरे होंठों से शहद टपकता है, शहद और शीर तेरी जुबान तले हैं, तेरी पोशाक की खुशबू लुबनान की सी है। मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा एक मुकफल बागीचा है, वो महफूज सोता और सरबा मोहर चश्मा है। तेरे बाग के पौधे लजीज मेवादार अनार हैं, मेहंदी और सुंबल भी हैं, जटामासी और ज़ाफ़रान, बेदे मुश्क और दारचीनी और लुबान के तमाम दरख्त, मुर और ऊद और हर तरह की ख़ास खुशबू। तू बागों में एक मंबा, आबे हयात का चश्मा और लुबनान का झरना है। ए बादे शुमाल बेदार हो, ए बादे जनूब चली आ, मेरे बाग पर से गुजर ताकि उसकी खुशबू फैले। मेरा महबूब अपने बाग में आए और अपने लजीज मेवे खाए। 5वां बाब। मैं अपने बाग में आया हूं, ऐ मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा, मैंने अपना मुर अपने बिलसान समेत जमा कर लिया, मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया, मैंने अपनी मैं दूध समेत पी ली है। ए दोस्तों, खाओ पियो पियो, हाँ ए अजीजो, खूब जी भर के पियो। मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज़ है जो खटखटाता और कहता है, मेरे लिए दरवाज़ा खोल मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा। क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फ़ें रात की बूंदों से भरी हैं। मैं तो कपड़े उतार चकी, अब फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी, अब उनको क्यों मैला करूं? मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिलो जिगर में उसके लिए जुम्बश हुई। मैं अपने महबूब के लिए दरवाज़ा खोलने को उठी और मेरे हाथों से मुर टपका और मेरी उंगलियों से रकीक मुर टपका और कुफल के दस्तों पर पड़ा। मैंने अपने महबूब के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया था। जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया, मैंने उसे पुकारा पर उसने मुझे कुछ जवाब न दिया। पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर पनाह के मुहाफिजों ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं तुमको कसम देती हूँ कि अगर मेरा महबूब तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं इश्क की बीमार हूँ। तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फजीलत है, ए औरतों में सबसे जमीला। तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फौकियत है जो तू हमको इस तरह कसम देती है। मेरा महबूब सुर्ख व सफ़ेद है, वो 10,000 में मुमताज़ है, उसका सर खालिस सोना है, उसकी जुल्फ़ें पेच दर पेच और कौवे सी काली हैं, उसकी आंखें उन कबूतरों की मानिद हैं जो दूध में नहाकर लबे दरिया तमकनत से बैठे हों। उसके रुखसार फूलों के चमन और बिलसान की उबरी हुई की यारियां हैं। उसके होंठ सोसन हैं जिनसे रकीक मुर टपकता है। उसके हाथ जबरजद से मुरस्सा सोने के हल्के हैं। उसका पेट हाथी दांत का बना है जिस पर नीलम के फूल बने हों। उसकी टांगें कुंदन के पायों पर संगे मरमर के सतून हैं। वो देखने में लुबनान और खूबी में रश के सरू है। उसका मुंह अज़बस शीरी है, हाँ वो सरापाए इश्क अंगेज है। ऐ यरूशलेम की बेटियों, ये है मेरा महबूब, ये है मेरा प्यारा। 6 बाब। तेरा महबूब कहाँ गया, ए औरतों में सबसे जमीला?
तेरा महबूब किस तरफ को निकला कि हम तेरे साथ उसकी तलाश में जाएं। मेरा महबूब अपने बोस्तान में बिलसान की क्यारियों की तरफ गया है ताकि बागों में चराए और सोसन जमा करे। मैं अपने महबूब की हूँ और मेरा महबूब मेरा है, वो सोसनों में चराता है। ऐ मेरी प्यारी, तू तिरजा की मानिद खूबसूरत है, यरूशलेम की मानिद खुश मंजर और अलमदार लश्कर की मानिद मुहीब है। अपनी आंखें मेरी तरफ से फेर ले, क्योंकि वो मुझे घबरा देती हैं। तेरे बाल बकरियों के गल्ला की मानिद हैं जो कोहे जलाद पर बैठी हों। तेरे दांत भेड़ों के गल्ला की मानिद हैं जिनको गुस्ल दिया गया हो, जिनमें से हर एक ने 2 बच्चे दिए हों और उनमें से एक भी बांझ ना हो। तेरी कनपट्टियां तेरे नकाब के नीचे अनार के टुकड़ों की मानिद हैं। 60 रानियां और 80 हरमें और बेशुमार कुंवारियां भी हैं। पर मेरी कबूतरी मेरी पाकीज़ा बेनज़ीर है। वो अपनी माँ की इकलौती और अपनी वालदा की लाडली है। बेटियों ने उसे देखा और उसे मुबारक कहा। रानियों और हरमों ने देखकर उसकी सताइश की। ये कौन है जिसका ज़हूर सुबह की मानिद है, जो हुस्न में महताब और नूर में आफताब और अलमदार लश्कर की मानिद मुहीब है। मैं चलगोज़ों के बाग में गया कि वादी के नबातात पर नज़र करूं और देखूं कि ताक में गुंचे और अनारों में फूल निकले हैं कि नहीं। अभी मुझे खबर भी न थी कि मेरे दिल ने मुझे मेरे उमरा के रथों पर चढ़ा दिया। लौट आ ऐ शुलमियत, लौट आ कि हम तुझ पर नजर करें। तुम शुलमियत पर क्यों नजर करोगे? गोया वो 2 लश्करों का नाच है। 7वां बाब। ऐ अमीरजादी, तेरे पांव जूतियों में कैसे खूबसूरत हैं। तेरी रानों की गोलाई उन जेवरों की मानिद है जिनको किसी उस्ताद कारीगर ने बनाया हो। तेरी नाफ गोल प्याला है जिसमें मिलाई हुई मैं की कमी नहीं। तेरा पेट गेहूं का अंबार है जिसके गिरदा गिर्द सोसन हो। तेरी दोनों छातियां 2 आहू बच्चे हैं जो तवाम पैदा हुए हों। तेरी गर्दन हाथी दांत का बुर्ज है। तेरी आंखें बैते रबीम के फाटक के पास हसबून के चश्मे हैं। तेरी नाक लुबनान के बुर्ज की मिसाल है जो दमिश्क के रुख बना है। तेरा सर तुझ पर किरमल की मानिद है और तेरे सर के बाल अर्गवानी हैं। बादशाह तेरी जुल्फों में असीर है। ए महबूबा, ऐशो इशरत के लिए तू कैसी जमीला और जां फजा है, और तेरी कामत खजूर की मानिद है और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हैं। मैंने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़ूंगा और इसकी शाखों को पकड़ूंगा। तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हों और तेरी सांस की खुशबू सेब की सी हो, और तेरा मुंह बेहतरीन शराब की मानिद हो जो मेरे महबूब की तरफ सीधी चली जाती है और सोने वालों के होंठों पर से आहिस्ता आहिस्ता बह जाती है। मैं अपने महबूब की हूँ और वो मेरा मुश्ताक है। ऐ मेरे महबूब, चल हम खेतों में सैर करें और गाँव में रात काटें, फिर तड़के अंगूरस्तानों में चलें और देखें कि आया ताक शगुफ्ता है और उसमें फूल निकले हैं और अनार की कलियां खिली हैं या नहीं। वहां मैं तुझे अपनी मोहब्बत दिखाऊंगी। मुर्दम गिया की खुशबू फैल रही है और हमारे दरवाज़ों पर हर किस्म के तर और खुश्क मेवे हैं जो मैंने तेरे लिए जमा कर रखे हैं, ऐ मेरे महबूब। 8वां बाब। काश कि तू मेरे भाई की मानिद होता जिसने मेरी माँ की छातियों से दूध पिया। मैं तुझे जब बाहर पाती तो तेरी मिच्छियाँ लेती
اور کوئی مجھے حقیر نہ جانتا۔ میں تجھ کو اپنی ماں کے گھر میں لے جاتی، وہ مجھے سکھاتی، میں اپنے اناروں کے رس سے تجھے ممزوج میں پلاتی۔ اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہوتا اور داہنا مجھے گلے سے لگاتا۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے۔ یہ کون ہے جو بیابان سے اپنے محبوب پر تکیہ کیے چلی آتی ہے؟ میں نے تجھے سیب کے درخت کے نیچے جگایا جہاں تیری ولادت ہوئی، جہاں تیری والدہ نے تجھے جنم دیا۔ نگین کی مانند مجھے اپنے دل میں لگا رکھ اور تعویذ کی مانند اپنے بازو پر، کیونکہ عشق موت کی مانند زبردست ہے اور غیرت پاتال سی بے مروت ہے۔ اس کے شعلے آگ کے شعلے ہیں اور خداوند کے شعلہ کی مانند سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا، باڑھ اس کو ڈبا نہیں سکتی۔ اگر آدمی محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے تو وہ سراسر حقارت کے لائق ٹھہرے گا۔ ہماری ایک چھوٹی بہن ہے، ابھی اس کی چھاتیاں نہیں اٹھی۔ جس روز اس کی بات چلے ہم اپنی بہن کے لیے کیا کریں؟ اگر وہ دیوار ہو تو ہم اس پر چاندی کا برج بنائیں گے، اور اگر وہ دروازہ ہو تو ہم اس پر دیودار کے تختے لگائیں گے۔ میں دیودار ہوں اور میری چھاتیاں برج ہیں، اور میں اس کی نظر میں سلامتی یافتہ کی مانند تھی۔ بال ہامون میں سلیمان کا تاکستان تھا، اس نے اس تاکستان کو باغبانوں کے سپرد کیا کہ ان میں سے ہر ایک اس کے پھل کے بدلے 1000 مسکال چاندی ادا کرے۔ میرا تاکستان جو میرا ہی ہے میرے سامنے ہے۔ اے سلیمان، تو 1000 لے اور اس کے پھل کے نگہبان 200 پائیں۔ اے بوستان میں رہنے والی، رفیق تیری آواز سنتے ہیں، مجھ کو بھی سنا۔ اے میرے محبوب، جلدی کر اور اس غزال یا آہو بچے کی مانند ہو جا جو بلسانی پہاڑیوں پر ہے۔ آمین ثم آمین۔